Hello and welcome again to my YouTube classes All Accounting. Dear students, आज हम अकाउंटिंग के एक ऐसे टॉपिक एक ऐसे चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं which makes accounting special, specific and different from other subjects. जो अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, जो अकाउंटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग सिर्फ यहाँ इंडिया में ही फॉलो नहीं होती है, बल्कि इस अकाउंटिंग को दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये अकाउंटिंग अगर हम कहें तो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो ये कैसे मुमकिन है कि अकाउंटिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है? इट इज बिकॉज ऑफ इट इज सर्टन स्टैंडर्ड्स, इट इज बिकॉज ऑफ इट इज सर्टन प्रिंसिपल्स व्हिच मेक्स अकाउंटिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में हम आज बात करेंगे जिनको फॉलो करके अकाउंटिंग को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनाया जाता है। तो अकाउंटिंग जो है ये सिर्फ फिर इंडिया में ही नहीं बल्कि इसके यूजर जो है आउटसाइड इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, और वो यूजर्स इस अकाउंटिंग से वो सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और आसानी से हासिल कर सकते हैं when the proper procedure, when the proper principles are being followed by the accountants while making accounting. तो ये principles क्या है which makes accounting universally acceptable, which makes accounting easy to understand for the others? These principles are to be discussed in this chapter. तो इसलिए जो हमारा आज का जो चैप्टर है, जो हमारा आज का टॉपिक है, that is based on the theory base of accounting. This is known as theory base of accounting. This is also known as generally accepted accounting principles. In the short form, it is written as GAAP. GAAP means generally accepted accounting principles. And this theory base of accounting is also known as concepts and conventions of accounting. तो इसको concepts और conventions of accounting भी कहा जाता है। अक्सर मैंने आपसे इस क्लास में बात की है what accounting is. तो मैं फिर से थोड़ा रिपीट करूंगा, लेट मी रिमाइंड यू व्हाट अकाउंटिंग इज। तो अकाउंटिंग अगर एक सेंटेंस में समझाया जाए तो अकाउंटिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है, लेकिन रिकॉर्ड कैसे करना? सिस्टमैटिकली। ये जो सिस्टमैटिकली या सिस्टमैटिक वर्ड है, दिस सिस्टमैटिक इंडिकेट्स दैट this accounting is based on certain principles, this is based on certain rules, this is based on certain methods. In our last class we discussed certain rules of accounting, those are called as golden rules of accounting, and in today's class we will be discussing about the principles of accounting. यानी जो अकाउंटिंग हम करते हैं किन उसूलों की बुनियाद पर अकाउंटिंग की जाती है, जो उसूल फिर फॉलो करके इस अकाउंटिंग को जनरली एक्सेप्टेबल बनाया जाता है। और ये उसूल सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ हमारे यहां नहीं, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन उसूलों को फॉलो किया जाता है। एंड दीज प्रिंसिपल्स आर टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास. Maybe we may have a few classes on these principles of accounting, but in today's class we will be discussing a few of those principles, and the principles which are going to be discussed in this class are, the first one is that is called business entity concept, the second one is called money measurement concept, and the third is accounting period concept, and the fourth one is going concern concept. We will be discussing these four principles in today's class. And before going to the exact this topic, before discussing this, let me tell you that these principles are called as concepts and conventions of accounting. So there are certain principles which are concepts of accounting, and there are the other principles which are conventions of accounting. So firstly we will be discussing the concepts. These are the concepts of accounting, and later on in the later classes, in the my coming classes, we will be discussing about the conventions of accounting. And there is a difference between the concept and the convention, and the concept is, since the both concepts and conventions are called principles, but the difference is that if concept of the accounting is not followed, if we will not follow the concept of accounting, it will distort the accounting results.
यानी अगर कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया गया, जो अकाउंटिंग का रिजल्ट होगा वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा. So this will create a problem in taking decisions. If the results are not correct, the information is not correct, the accounting users will not be able to take the right decisions. So the concept must be followed so that we can draw correct results from the books of accounts. So this is what concept means. Concept is a principle. It is a statement which is to be followed by the accountants, by the business fraternity, so that to make its accounting correct, so that to make its results correct. Next one is conventions. Conventions are those principles, those assumptions of accounting. If these conventions are not followed, then it may not distort the results. Results पे शायद असर नहीं पड़ेगा, but it will mislead accounting यूजर्स. लेकिन अकाउंटिंग यूजर्स को मिसलीड करेगा. अकाउंटिंग यूजर्स मिसलीड होने का मतलब है अकाउंटिंग यूजर्स मे नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट अकाउंटिंग करेक्टली. मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में कहा कि एक अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. द लेफ्ट इज कॉल्ड डेबिट एंड द राइट इज कॉल्ड क्रेडिट. बट इफ विल चेंज इट, विल मेक द लेफ्ट क्रेडिट एंड द राइट विल मेक डेबिट. And we'll write the correct information in the account. डेबिट में डेबिट ही लिखेंगे, क्रेडिट में क्रेडिट का ही लिखेंगे. बट अकाउंटिंग यूजर्स एज अ कन्वेंशन, ये रस्मी तौर पर हर कोई मानता है कि दैट लेफ्ट इज डेबिट, बट वी हैव क्रिएटेड द लेफ्ट क्रेडिट. एंड दिस विल certainly have this misleading effect on the accounting users. So the conventions are to be followed so that the information contained in the books of accounts is easily this interpreted by the accounting users, is easily understood by the accounting users without misleading them. So both conventions as well as concepts are important. Both are called as principles. Both come under the category of GAAP, and we have to follow both of them, the concepts as well as the conventions. So let me first discuss what are the concepts. Concepts क्या है? तो पहला concept हमारा है, that's called as business entity concept. Is very simple. Let me keep it very brief and let me try to make you understand in a single sentence what this concept indicates, what this means. This concept says business and businessmen are treated as टू सेपरेट एंटिटीज. ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग करते वक्त आप ये समझ के अकाउंटिंग करो कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है, बिजनेस का ओनर जो है, दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज. सिंपल वर्ड्स वी से बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेसमैन इज सेपरेट. बिजनेस जो होता है ये अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है. इसका मतलब क्या हो? व्हाट इज इट इम्प्लीकेशन ऑन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में इसको क्या करना है? अकाउंटिंग में ये करना है कि जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, बिजनेसमैन की नहीं. जब आप रिकॉर्ड करते हो तो बिजनेस का करते हो, इनकम रिकॉर्ड करते हो तो बिजनेस की करते हो, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो तो बिजनेस का करते हो, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो तो बिजनेस का करते हो. और बिजनेसमैन का कोई भी इनकम एक्सपेंस, की जो पर्सनल इनकम एक्सपेंस या एसेट लायबिलिटी होगा वो आप बिजनेस के साथ रिकॉर्ड नहीं करते हो. रादर यू डोंट मेक अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन्स पर्सनल ट्रांजैक्शंस. वी मेक अकाउंट ऑफ ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तो याद रखना है हमें कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे या अकाउंटिंग करते हैं, वी डू अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर द बिजनेसमैन. हम बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग नहीं करते हैं, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं. और बिजनेसमैन की पर्सनल इनकम या पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस की अकाउंटिंग के साथ मिलाया नहीं जाता. बिजनेसमैन के पर्सनल खर्चों को बिजनेस के खर्चों के साथ ऐड नहीं किया जाता. बिजनेसमैन की कोई पर्सनल इनकम या कोई पर्सनल एसेट को बिजनेस के एसेट या इनकम के साथ ऐड नहीं किया जाता. वी हैव टू कीप द अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनली. दिस इज व्हाट इट मींस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस इज सेपरेट, बिजनेसमैन इज सेपरेट. एग्जांपल के लिए मैं एक बात आपको बोलूं, कैपिटल जो होता है, कैपिटल होता है वो अमाउंट जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को देता है. अपने बिजनेस में जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं. लेकिन बिजनेस जो है उस कैपिटल को एक कर्जे की तौर पर रिकॉर्ड करता है. बिजनेस कहता है भाई बिजनेस तो बिजनेसमैन का ही है, लेकिन अकाउंटिंग में बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है. और इसी वजह से बिजनेस जो है, बिजनेस उस कैपिटल को एज लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है और लायबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है.
इसी तरह अगर बिजनेसमैन बिजनेस से कोई भी चीज अपने लिए निकालता है फॉर हिज पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और ड्राइंग जो होता है ये बिजनेस कहता है कि ये मेरा पैसा बिजनेसमैन के पास है, ये बिजनेस एसेट की तरह रिकॉर्ड करता है, ये कहता है कि ये मेरा पैसा है जो बिजनेसमैन ने लिया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग जब भी हम करेंगे वी हैव टू ट्रीट ourselves that we are the accountants of business, we are not accountants of businessman, and when we do accounting, जब हम accounting करेंगे तो हम सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जो बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के साथ रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं है, तो उस वहां रिकॉर्ड करना बिजनेसमैन के यहां, और हमें रिकॉर्ड उसको करना है ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट अकाउंटेंट्स ऑफ बिजनेस, वी आर द अकाउंटेंट्स ऑफ बिजनेसमैन। दैट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब देखिए अगर इस प्रिंसिपल को हम यूज नहीं करेंगे, बिजनेसमैन की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबिलिटी इनकम को बिजनेस के साथ ऐड करेंगे, लेकिन कल जब रिजल्ट निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, वो तो सारा गलत होगा। एसेट जो होगा किसका एसेट होगा, इनकम जो होगी बिजनेस का, प्रॉफिट लॉस होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? वी विल नॉट बी एबल टू ascertain the correct position of the business if we will mingle the transactions of the business and the businessman together. So we have this principle is to be followed so that we can get exact results. That is, we have to keep the business and the businessman two separate entities, and we have to maintain the accounts of business only. The next one is money measurement concept. It's very simple, very easy. Since we say accounting is recording of financial transactions of business, हम कहते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वही ये कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। In accounting, we have to record only those transactions and events of business which are measured in terms of money. That is what we say, what cannot be measured in terms of money cannot be recorded. बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता है, और ऐसी ट्रांजैक्शंस को हमारी इस अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि कितने में खरीदा तो रिकॉर्ड होगा। मशीन खरीदी है तो हम मेजर कर सकते हैं कितने में मशीन खरीदी तो रिकॉर्ड होगा। हमने बैंक से लोन लिया है, कितना लिया है मनी में मेजर कर सकते हैं तो रिकॉर्ड होगा। बिजनेसमैन ने कैपिटल दिया है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज वी कैन मेजर इट। So all the transaction incomes, expenses, asset, liabilities, capital, so these are the transactions which can be measured in terms of money and can be recorded. But at the same time we have got employees, an honest employee in our business. What about the honesty of an employee? We cannot record honesty of an employee because his honesty though is very beneficial to the business but cannot be recorded because honesty cannot be measured in terms of money. Similarly, death of a very intelligent and honest employee. इस तरह किसी एम्प्लॉई को की डेथ हो गई, वो बड़ा ही काबिल था, बड़ा ही ऑनेस्ट था हमारे बिजनेस के लिए, बड़ा ही फायदेमंद था, लेकिन उसकी डेथ अगेन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Maybe the quarrel between the employees, the conflict between the employees, that will have an effect on the functioning of the business. But still that quarrel, that conflict cannot be recorded in our business. Why? Because that quarrel, that conflict cannot be measured in terms of money. So this concept says that in accounting we have to record only those transactions which are measured in terms of money, and those transactions are called as financial transactions. उन्हीं transactions को हम financial transactions बोलते हैं, और financial transactions में simply 5 items आते हैं, income, incomes, expenses, assets, liabilities and capital, और इन्हीं 5 ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है, और यही 5 ट्रांजैक्शन जो हैं दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। 5 ही नेचर तो 5 ही होता है, ट्रांजैक्शन हजारों हो सकती है लेकिन उनका नेचर सिर्फ 5, या तो इनकम होती है, या एक्सपेंस होता है, या एसेट लायबिलिटी होता है, या कैपिटल होता है। उन्हीं का फ्लो होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो इन्हीं का आना जाना बिजनेस में होता है, और यही आइटम्स हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहता है कि दैट अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड फॉर अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग जो हम मेंटेन करते हैं
एक मुख्तसर वक्त के लिए करते हैं, जिसका एक बिगिनिंग होता है, एक एंड होता है। और वो मुख्तसर वक्त जो होता है वो होता है मैक्सिमम 12 मंथ्स। 12 महीनों के लिए अकाउंटिंग की जाती है, और इन 12 महीनों का एक स्टार्ट होता है, एंड होता है, और इन्हीं 12 महीनों का रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, और इन्हीं 12 महीनों का फिर रिजल्ट भी निकाला जाता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग इज डन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अकाउंटिंग जो है एक मुख्तसर वक्त के लिए, खास वक्त के लिए की जाती है। रिकॉर्डिंग जो होती है एक खास वक्त के लिए की जाती है, नॉट इंडेफिनिटली। इंडेफिनिटली का मतलब हम कलम उठा के सिर्फ लिखते रहते नहीं है कि विदाउट लुकिंग बैक कि हुआ क्या है, लिखा क्या है, चक या हम कहते हैं उसको कंट्रोलिंग करने के बगैर, रिजल्ट निकालने के बगैर हम लिखते जाते हैं। लेटेस्ट है कुछ, कोई बिजनेसमैन ऐसा कहता है थे तो लिखित लिख के रखो, फिर एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस की लाइफ के एंड पर हम देखेंगे हमने क्या कमाया, बिकॉज एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस विल बी नोन ओनली एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस। But we don't wait for the end of the business. Rather, we divide the life of the business into many, what do you call that, periods. बिजनेस की पूरी लाइफ को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और उन्हीं पीरियड्स को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, और वो पीरियड होता है 12 महीनों का, और 12 महीनों की ही रिकॉर्डिंग की जाती है। 12 महीनों के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाता है, 12 महीनों के इनकम्स रिकॉर्ड की जाती है, और एसेट लायबिलिटी भी इन्हीं 12 महीनों का फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड किया जाता है। विल डिस्कस इट। एसेट लायबिलिटी में थोड़ी फर्क होती है, बिकॉज वी ट्रांसफर द लास्ट ईयर्स एसेट टू द करंट ईयर। तो इनकम एक्सपेंस जो होता है इन्हीं 12 महीनों का होता है, और प्रॉफिट और लॉस भी इन्हीं 12 महीनों का निकाला जाता है। और व्हाई डू वी डू दिस? वी डू इट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग जो है हमें इंडेफिनेटली मेंटेन नहीं करनी है, बल्कि अकाउंटिंग जो है हमें मुख्तसर वक्त के लिए हमें मेंटेन करनी होती है, और वो मुख्तसर वक्त जो होता है वो 12 महीनों का होता है, और 12 महीनों के लिए अकाउंटिंग की जाती है। फिर कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो 12 महीनों, तो 12 महीने के बाद तो करते ही है, लेकिन वो 12 महीनों को भी सब डिवाइड करते हैं, 6-6 महीने के बाद रिजल्ट निकालते हैं। कुछ बिजनेस तो क्वार्टरली रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। बैंक्स अगर आप देखो तो वहां क्वार्टरली रिजल्ट को शो किया जाता है, तो वो 12 महीनों का भी वेट नहीं करते, बल्कि 3-3 महीने के बाद वो अपना मतलब अकाउंट्स क्लोज करके रिजल्ट देते हैं। लेकिन 12 महीना मैक्सिमम है, 12 महीने के बाद नहीं। तो 12 महीनों के लिए अकाउंटिंग की जाती है, दैट इज द अकाउंटिंग पीरियड, और 12 महीनों का रिजल्ट ही फिर कम्युनिकेट किया जाता है टू अकाउंटिंग यूजर्स, एंड दैट इज व्हाट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मीन्स। Now the last one for today, that is the going concern concept. Going concern concept, very easy. Going concern concept. This concept, this principle tells accountants, tells us that when you do accounting, you treat business as a going concern. You have to treat business that it is a never ending process. You should not treat, अगर हम ऐसा assume करेंगे कि business बंद होने वाला है, कल business बंद होगा, 1 साल के बंद होगा, तो maybe there may be many incomes, expense, asset which we may not record. हम कहेंगे कि भाई बिजनेस कल बंद होने वाला है, तो रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है, या we may not do business at all. अगर हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस कल बंद होने वाला, परसों बंद होने, 1 महीने के बाद बंद होने वाला है, why would we just borrow loans of 1 crore? Why should we borrow? Why should we purchase assets of crores? If we assume that business is going to be shut down tomorrow, कल ये बंद हो जाएगा, तो why to have the investment? Why to do investment of crores in the assets? Why to borrow the loans in crores? So we borrow loans, we buy assets. हम कर्जा भी चढ़ाते हैं, कर्जा भी लेते हैं सालों साल के लिए, और यहाँ एसेट भी हम खरीदते हैं सालों साल के लिए। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हमारी होती है, लॉन्ग टर्म एसेट भी होता है ये, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है जिसको हमें 1 साल के बाद पे करना है, लॉन्ग टर्म एसेट वो होता है जो हमें 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम एज्यूम करेंगे कि बिजनेस 1 साल के बाद बंद होने वाला है, तो देयर विल बी नो कैटेगरी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। So ये long term asset, short term asset, long term liability, short term liability, it is because of this going concern concept.
तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के जरिए हमें क्या एज्यूम करना है, दैट बिजनेस इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, बिजनेस विल गो ऑन इंडेफिनिटली, एंड ऑन द बेस ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैटेगराइज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एसेट वो होता है जो 1 साल के बाद 10 साल 15 साल तक हमें फायदा देगा, मतलब आप समझते हो कि बिजनेस 15 साल तक चलेगा। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती है जिसको आपने पे करना होता है 1 साल के बाद, यानी फॉर 2 साल 3 साल 10 साल में आपको पे करना होता है। इसका मतलब आप एज्यूम करते हो कि बिजनेस वहां तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा, 20 साल तक चलेगा। तो आप ये एज्यूम करते हो कि बिजनेस इस हद तक चलेगा, एंड दिस यू डू और दिस वी डू बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. These are the four. There are many other principles of accounting, but these are the first four concepts and principles of accounting on the basis of which accounting is done. ये accounting को base देती है, बुनियाद है accounting की. Since this is theoretical, but all the numericals of accounting is based on these principles. So I hope you have understood these principles. If there is any confusion, you can write to me. I'll be happy to answer you, to clear your confusions, and I'll be meeting you again with some more accounting principles in my next class. Till then, I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take good care of you.